हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई.com। और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ स्टडी विद मी एएफओ सीरीज पार्ट 2। और इसमें हम एंटोमोलॉजी का टेरिकोटा जो है उसको शुरू करेंगे। एंड लेट्स बिगिन। सो टेरिकोटा में क्या होता है, इसके फीचर्स जानते हैं। द इंसेक्ट्स हेयर दे आर विंग्ड और दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द विंग्ड इंसेस्टर्स। फाइन। सो मतलब वो विंग्ड खुद भी हो सकते हैं कि उनके इंसेस्टर जिनसे वो मतलब उनके जो इंसेस्टर्स थे वो विंग्ड हों, ऐसा पॉसिबल है। Also, the metamorphosis is present and pregenital appendages they are absent. For example, टेरिगोटा का मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया, अब कंपेयर कर सकते हैं। अब जो भी मैं आगे बताऊंगी वो सारे जो होंगे ऑर्डर्स होंगे, दे बिलोंग टू एक्सो टेरिकोटा। और एंडो टेरिकोटा का जब मैं शुरू करूंगी मैं आपको तब बता दूंगी। अब एक्सो टेरिकोटा के फीचर्स देख लीजिए। इसमें क्या होता है, विंग्स दे आर डेवलप्ड एक्सटर्नली एंड देयर इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस लाइक द egg and then nymph is formed and adult is formed. Fine। और इनमें जो है pupal stage absent होती है, that's why it's called as incomplete metamorphosis. So let's just move to next. So now just talking about Thysanotera, and it means they have the fringed wings. Fringed wings, you can just look at the picture and you can see they have the fringed wings. And इसमें आता क्या है, what are they? They are chili thrips, onion thrips and rice thrips. Thrips जितने भी होते हैं वो सारे Thysanotera में आते हैं. Now the important and interesting point here about thrips is that they are the connecting link between an incomplete and incomplete metamorphosis. Like for example, they are connecting link between the एक्सो एंड एंडो टेरिकोटा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया तो उनके कनेक्टिंग लिंक है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस स्लाइड पहले। ठीक है, उसके बाद इनमें जो माउथ पार्ट्स हैं दे आर एसिमेट्रिकल। ये क्वेश्चन भी बन सकता है दैट हु थ्रिप्स हैज एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स, बिकॉज इनमें जो होता है कि वो एसिमेट्रिकल इसलिए होते हैं बिकॉज इनमें राइट मैंडिबल एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर they have the asymmetrical mouth parts. Also, you know that they are rasping and sucking type. And okay, and what do they spread, और कौन सी डिसीज जो है ये स्प्रेड करती है? दे आर वेक्टर फॉर बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट, इन विच व्हाट हैपेंस दैट टॉप बर्ड इज killed and the necrosis spread downwards. ठीक है, so they groundnut बर्ड नेक्रोसिस एंड ग्राउंडनट करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज लाइक दे आर लिंक बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सेकंड इज कि इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं दे आर एसिमेट्रिकल। एंड the third question is like who is the vector of bud necrosis in groundnut, and so you can just mark it out. So next, now let's just differentiate between a Ephemerotera and Odonata. So Ephemerotera में actually mayflies आती हैं, and the mayflies you can just look up on the picture and you will be able to differentiate between the mayflies and dragonflies. And dragonflies, they are coming up in Odonata. So now in mayflies actually they are more primitive than dragonflies because they have a kind of monocondylic type of mandibles. Like their mandibles are hinged to the head capsule by just one condyle. ठीक है, 1 point they are hinged to the head capsule. But in case of dicondylic type of mandibles, they are hinged by the 2 points. Fine. So this is the difference between a Ephemerotera and the Odonata order. So now let's just move to. So now let's just talk about Plectoptera and Grylloblachodia. And they Plectoptera, they have the stone flies, and Grylloblachodia, they have the rock crawlers. And इनमें इनके nymphs में tracheal gills होती हैं. Fine. So you can just look at the pictures here because I have just added them so for your convenience. And it took so much time to add the pictures because on YouTube there is a you can't add every picture. You need to check it out that if it's copyright free and everything. So just for your convenience, just check it out the pictures, you will be able to remember easily. That's it. So next is like Grylloblachidia, they have the rock crawlers, and they are 8 Now you might be thinking that if they are 8 then why they are added in Terragota. So basically मैंने लिखा था कि जो टेरो
गोटा में आते हैं, दे आर इधर खुद विंग्ड होंगे या फिर जो भी इंसेस्टर्स से उनको हमने वो आगे डेवलप हुए हैं, द इंसेस्टर्स माइट बी विंग्ड, सो इनके इंसेस्टर्स दे माइट बी विंग्ड, ओके। इनकी जो आईज होती हैं दे आर reduced and they have a well developed oviposture. You can just look at the picture and you can make a picture in your mind and you will be able to remember them easily, okay. So let's now move to the phasmids and orthoptera. Just make the difference, like look at the phasmids में क्या आते हैं, the stick and leaf insects, they come in this, and the orthoptera, you know, the grasshoppers, the locusts, the crickets, they all come in here. So their forewings, they are modified into tegmina. You know that the wings वाली वीडियो भी मैं लेके आऊंगी जिसमें ये explain करूंगी मैं that how the wings modification of wings, legs and everything I'll take up in future, but just remember for now that their wings, they are forewings, they are actually थोड़े से they are thicker as compared to the normal wings, and that's they are called as tegmina, fine. And their head is hypognathous, like the mouth parts, they are vertically oriented. You can just look at the picture that they are all are vertically oriented, जैसे बिल्कुल मतलब the face or the mouth parts, they are oriented towards the ground or the earth, fine. That's why. So now अब इनके orthoptera is, so since order orthoptera is actually important, so we will be discussing up the important points related to it. Like there is first point is that the holonistic type of respiration is present in orthoptera. So basically इसमें क्या होता है कि जो 10 pairs of spiracles होते हैं वो सब वर्किंग होते हैं और ये अपनी 10 pairs of spiracles से respiration करते हैं. So that's why it's called as holonistic type of respiration in grasshoppers. And also the hind legs, they of the grasshopper are jumping type, so it's actually a word term is used as saltorial. It's a modification of legs, fine. And the forelegs of the mole crickets, they are fossorial, that means they are digging type, fine. And also the hind legs of the crickets, they produce this sound. This is a very important question and this is asked already in some exam. This is very important question, fine. So eggs, they are laid here in the egg pods. I will discuss this also in a slide where I'll be discussing about locust and everything. वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी that how they lay their eggs. They actually don't lay the egg singly or anything, they just make an egg pod in which the eggs are laid. It's fine. Now there are three families that come here in orthoptera, that's Acrididae and Tetragonidae and this is Grylotepidae. सो जो लोकेस्ट आते हैं और शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऊपर आते हैं वो सब इसी में आते हैं. देन कैटिडिड्स एंड क्रिकेट्स दे कम इन टेटिगोनिडाई एंड दिस मॉल क्रिकेट्स कम्स इन द थर्ड वन, फाइन. सो ये जस्ट रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन. Now let's just move to the another order, that's Dermatera. Dermatera में ear wings आते हैं. So इनके सरकाई जो होते हैं they are forceps like. So you just look at the picture and you will be able to understand it properly. The picture का काम यही है कि आपको कुछ रटना ना पड़े, fine. And then web spinners होते हैं Ambiotera. They live in the silken tunnels and their tarsi is swollen for webbing, fine. So now let's just move to, so now let's just talk about Dictyoterra. That's इसमें आते हैं कॉकरोच और मेंटेस आते हैं, फाइन. सो इसमें फोर विंग्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं टू टेगमीना एंड वी विल बी कवरिंग अप विंग्स वाली इन फ्यूचर, श्योर फॉर श्योर. और इनके जो इनमें क्या होता है कि इनमें एक सिंपल आइज होती हैं और सिंपल एंड कंपाउंड आइज दोनों होती हैं. जो आपको जो कॉकरोच में बड़ी बड़ी आंखें दिखती है ब्लैक कलर की, देयर कंपाउंड आइज, बट देयर इज ऑल्सो ए पॉइंट सिंगल. उन आंखों के बीच में एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको सिंगल जिनको सिंपल आइज बोलते हैं और ओसेलाई बोल देते हैं. एंड इट्स ऑल्सो इट्स कॉल्ड एज ए फेनिस. इसकी जो बेसिक टर्म जो होती है दैट्स फेनिस्ट्रे. सो ये जो होता है ये लाइट को डिटेक्ट करता है. सो दैट इज द मेन फीचर कि इनमें वो प्रेजेंट होता है, फाइन. सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फेनिस्ट्रे किस में प्रेजेंट होता है. तो क्वेश्चन द आंसर विल बी डिक्ट्योटेरा और कॉकरोचेस और
दिस ऑर्डर में प्रेजेंट होता है. फाइन. Next is the ambulatorial legs are also present, like they are walking type of legs. Fine. So इनमें walking type of legs are present. For example, मैंने grasshopper में बताया था hind legs of grasshopper they are jumping type. Similarly there are walking type of legs. ठीक है. अब आइसोटेरा की बात करते हैं और आइसोटेरा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मैं बताना चाहती हूँ. That they have the adults have the equal size of wings. That's why they are called as isoptera. Isoptera means that same. Iso means same and ptera means wings, so same wings of equal size. That's why. Now they are social insect and they have rectal pouch. Rectal pouch में प्रोटोजोन कॉलोनी होती है जो कि इनके हाइंडगट के इलियम में प्रेजेंट होती है. ये मैंने डार्क इसलिए किया है बिकॉज यू कुड टेक रेक्टम ऑल्सो, कि जो ये कॉलोनी होती है इट इज कॉल्ड एज रेक्टल पाउच बिकॉज इनके रेक्टम में वो होती है कॉलोनी. ऐसा नहीं है, इन द इलियम ऑफ द हाइंडगट द कॉलोनी इज प्रेजेंट. सो अब उसका काम सब कुछ मैं अगली स्लाइड में आपको. So now you can just look at here that this is the hindgut and they have the symbiotic fauna present here, and the lower termites they have protist and bacteria, the higher termites they have only bacteria. And also you can just look at the this non-reproductive ones. The soldiers they are non-reproductive, and the pre-soldiers and workers they all are non-reproductive caste, and they are all aterus. And the reproductive caste they are like they are the male king and the queen. नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मेल होता है वो कौन से एग से डेवलप होता है. दैट इट डेवलप्स फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स. फाइन. सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या मेल जो है वो कैसे डेवलप होता है. एंड बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग्स. सो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद कर लेना अच्छे से. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सोल्डर्स के फीचर्स के बारे में. जो सोल्डर्स होते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं और केयर वगैरह का काम सारा वर्कर्स के हाथ में होता है. ऑल्सो रिप्रोडक्शन का काम मेल्स एंड फीमेल्स लाइक किंग एंड क्वीन के हाथ में होता है. फाइन बेसिकली. एंड जो सोल्डर होता है वो उसके जो ये मैंडिबल्स हैं यहाँ पे they are sickle shaped mandibles are present, and also the head is larger as compared to the other. This is how you can differentiate between worker and a soldier. So ऐसे आपको पता चलेगा कि ये soldier है इस कॉलोनी में and ये वाला वर्कर है. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. अब बात करते हैं अबाउट द फ्रंटल ग्लैंड. फ्रंटल ग्लैंड का मतलब क्या होता है दैट दे शोल्डर्स व्हाट डू दे हैव. द शोल्डर्स में क्या होता है द फ्रंटल ग्लैंड इज प्रेजेंट जो कि इनके डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करता है. एक्चुअली उसमें वो कुछ ऐसा सिक्रीट करता है थ्रू थ्रू frontanal. Frontanal means the frontanal is the pore through which that secretes out the white sticky latex material as a defense mechanism against ants and everything. So that's how they protect the colonies. Fine. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फंगल गार्डन. फंगल गार्डन क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं ना वो फंगल गार्डन बनाते हैं. द एक्चुअली दे कंस्ट्रक्ट द स्पॉन्जी द डार्क कॉम लाइक स्ट्रक्चर दैट्स मेड अप ऑफ द फिकल मैटर्स. ठीक है. उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, एंड जो फंजाई होती है वो आके ग्रो करने लग जाती है उसके ऊपर. एंड द टर्माइट्स दे उनको तो बहुत अच्छा उन्होंने घर बनाए, उसके ऊपर फंजाई आ गई. तो they consume both the fungi as well as the combs. they consume and उसका खाना पीना अच्छे से हो जाता है. and the fungus food को जो वो खाते हैं that's called as ambrosia. fine. so ये terms आपको याद करनी है. अब इसमें questions बता देती हूँ. the thing ये आ सकता है कि द फंगल फूड इज कॉल्ड एज एम्ब्रोजिया, ये क्वेश्चन बन सकते हैं. एंड द फ्रंटल ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और इनकी जो मॉडिफिकेशन है शोल्डर्स की उसके ऊपर आ सकता है. और ये मैंने आपको बता दिया कि जो हाइंड गट होती है उसमें इलियम ऑफ द हाइंडगट उसमें ये रहते हैं सिम्बायोटिक फौना, ये क्वेश्चन बन सकते हैं. एंड द फर्टिलाइज्ड एग्स आल्सो एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स में से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्कर्स डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग्स, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स में से जो है वो किंग डेवलप होता है. ये क्वेश्चन बन सकते हैं. सो फ्रॉम 5 to 7 questions can come from this slide only if you remember it properly. So let's just move to next slide.
सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हेमिप्टेरा। सो हेमिप्टेरा में क्या होता है कि इसमें दो सब ऑर्डर्स आते हैं, द हेटेरोप्टेरा एंड द होमोटेरा। एंड इसमें ज़्यादातर क्या है कि बग्स वगैरह जो हैं वो सारे बग्स इसी में आते हैं हेटेरोप्टेरा में। इस चीज़ को याद रखना कि द बग्स कम इन हेटेरोप्टेरा एंड द एफिड्स एंड द सकिंग पेस्ट दे ऑल कम इन दिस होमोप्टेरा। फाइन। और इसमें कौन कौन से आते हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। Okay, so first of all, let's just talk about Miradi. Fine. So Miradi में क्या है कि the Miradi में the sorghum earhead bug आता है, the tea mosquito bug आता है, the cotton bug comes in Pyrrhocoridae. So ये क्वेश्चन आ सकता है, एक ये वाला क्वेश्चन। एंड द सेंट ग्लैंड्स आर द फीचर ऑफ विच फैमिली, ये क्वेश्चन बन सकता है, बट चांसेस आर लेस, बट स्टिल यू कांट टेक एनी रिस्क। ओके, so aphids come here, lack insects and scales and everything, mealybugs they come in pseudococcidae। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जस्ट रिमेंबर दिस। अब क्वेश्चन नहीं भी बनता, बट यू शुड रिमेंबर फॉर योर नॉलेज, बिकॉज ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए दैट एसिड्स कम्स इन दिस। ठीक है। एंड यस दिस थिंग द डेल्फिसिडी, इसमें वाइट बैक ब्राउन बैग्ड, जो वाइट बैग्ड प्लांट होपर्स और ब्राउन प्लांट होपर्स आते हैं। और जो लोफोपिडी है इसमें लीफ होपर्स आते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, कि ये जो इसमें प्लांट होपर्स आते हैं एंड इसमें शुगर केन लीफ होपर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इन लोफोपिडी। लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। So now we will talk about the mouth parts in Hemiptera. They are piercing and sucking type. And also there are 4 stylets present in labium. Now if you talk about mosquitoes, there are 6 stylets are present. But in case of this Hemiptera, there are 4 stylets that are present. And the apical portion of the forewing is membranous, and that's called as hemielytra। मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स वाली वीडियो हम लेकर आएंगे और उसमें इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। ऑल्सो द होमोप्टेरन्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, दे आर सकिंग पेस्ट। सो बेसिकली इनमें फ्लूइड चैम्बर प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड ऑल्सो जो एफिड्स होते हैं वो विविपैरिटी शो करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ऑल्सो जो एफिड्स होते हैं उनमें कॉर्निकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। एंड बेसिकली इनका काम होता है टू सिक्रीट द एक्सेसिव लिक्विड, जो उन्होंने सक कर लिया है और जो एक्सेसिव लिक्विड रिमूव करना होता है उसके थ्रू करते हैं। सो बेसिकली वो जो हमने पढ़ा हुआ है कि वो हनी ड्यू सब्सटेंसेस प्लांट के ऊपर क्रिएट कर देते हैं, जिसके ऊपर सूटी मोड लग जाता है। सो बेसिकली वो कॉर्निकल्स के थ्रू ही वो रिलीज होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड ऑल्सो दैट जो एफिड्स होते हैं वो फीड करते हैं ऑन द फ्लोएम। जो लीफ होपर्स होते हैं दे फीड ऑन कॉर्टिकल सेल्स। सो ये पॉइंट भी याद रखना। मेनली जो लैक होता है वो फीमेल लैक प्रोड्यूस करती है, नॉट द मेल वन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ऑल्सो the waxy secretions are there on the millibug. If you haven't seen millibug, you should, because you should go on YouTube or anything, you can just check it out how millibugs look. So there are white waxy secretions that are present on the body of millibugs। and also जो ब्राउन प्लांट होपर होते हैं वो राइस ग्रासी स्टंट वायरस जो है उसको ट्रांसमिट करते हैं। ब्राउन प्लांट होपर का मैंने पीछे ही आपको बताया था कि वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो भी आप याद कर सकते हो। तो लेट्स मूव टू नाउ नेक्स्ट थिंग। नाउ वी विल बी कमिंग अपॉन एंडोटेरिकोटा। हमने एक्सोटेरिकोटा में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो सब कंप्लीट खत्म कर लिए, और अब हम एंडोटेरिकोटा के बारे में करेंगे। इसमें जो विंग्स होते हैं दे आर इंटरनली डेवलप्ड एंड ऑल्सो देयर इज कंप्लीट metamorphosis। Fine. So now let's just move to first. There is diptera। So diptera में true flies आती हैं, इनमें two wings present होते हैं, very important, that's why two wings are present, so it is called as diptera। di means two and ptera means the wings। ये आपको पता है, wings, ptera means wings। ठीक है। नाउ द फैमिलीज यू कैन चेक इट आउट दैट कौन कौन सी फैमिलीज है जो इसमें आती हैं। सो इसमें बेसिकली
ये मस्किटोज आते हैं, मैंने आपको मस्किटोज के बारे में बताया था। इनमें भी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं और उनमें 6 स्टाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हेमिप्टरा होते हैं उनमें 4 स्टाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड, ओके। और इसमें गालमेजेस, लीफ माइनर्स, फ्रूट फ्लाइज आ जाते हैं। और जो सिरफड़ी होती हैं ये मेनली क्या है, प्रीडेटर्स का ग्रुप है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और जो टेक्निडेई है दैट्स ए पैरासिटिक ग्रुप। सो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला। अब थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जो मैंने आपको बताया कि इनमें 2 विंग्स प्रेजेंट है, लेकिन हमने पढ़ा था कि इंसेक्टा में 4 विंग्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो 2 विंग्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, हाल्टेयर्स में, ठीक है। और ये कैनोसेंसरी ऑर्गन बन जाते हैं, इनको फ्लाइट मतलब जब भी उड़ते हैं तो उसमें इनको हेल्प करता है। सो बेसिकली क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल्टेयर्स किस ग्रुप का फीचर है। सो इट इज़ अ फीचर ऑफ डिप्टेरा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लेपिडोप्टरा। और लेपिडोप्टरा में स्केल विंग्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल्सो इसमें सेमी लूपर्स, पिंक बॉल वॉर्म और डायमंड ब्लैक मॉथ, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। और ये किस में आता है, प्लूटेलिडी में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है कि जो अनार बटरफ्लाई होती है वो कौन सी उसमें आती है, लेपिडोप्टरा में आती है। देन द राइस मोथ बिलोंग्स टू सब फैमिली ग्लैनरी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर लाइज की जो मैगजिले होते हैं इनमें दे आर मॉडिफाइड इनटू ग्ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। एंड लेट जस्ट मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कोलियोप्ट्रा। कोलियोप्ट्रा में वीवल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वीवल्स वगैरह आ जाते हैं, बीटल्स आ जाते हैं। तो इसमें जो तो यहाँ पे कॉक्सिनेलिडी जो फैमिली होती है इसमें बेसिकली वो जो होती है उसमें ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं प्रीडेटर्स होते हैं, लेकिन जो हड्डा हड्डा बीटल होता है इसमें वो नहीं प्रीडेटर है। और लेडी बर्ड बीटल जो होती है इसी फैमिली को बिलोंग करती है, वो एफिड्स के ऊपर अटैक करती है। और जो वीवल्स होते हैं वो कर्क्यूलिनिडी में बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद हम बात करते हैं और एनोबडी में एक मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ सिगरेट बीटल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि टबैको जब हम इसको स्टोर करके रखते हैं इन द फैक्ट्रीज तो उसको तब इफेक्ट करता है जब वो स्टोरेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रूचली, जिसमें पल्स बीटल्स वगैरह एंड मूंग धोरा वगैरह जो स्टोर्ड ग्रेन्स के ऊपर अटैक करते हैं इंसेक्ट, वो सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पिजेडियम है ये किस उसका फीचर है। सो पाइजोडियम इज एक्चुअली दिस the abdomen. You can see that half abdominal part is visible, that's called as pygidium, and that's present in Bruchidae family. That's a feature of Bruchidae family. So this question can be asked, you just remember this information that pygidium is a feature of Bruchidae, okay. So let's just move to next. Now very important, the thing is here, the this melody is the family में belong करते हैं the Bristol blister beetles, and this question can be asked, this is very important I should say, कि ये रिलीज क्या करते हैं, they release canthradin जो कि हाईली टॉक्सिक केमिकल होता है और इसकी वजह से जो है ब्लिस्टरिंग हो जाती है फॉर मतलब जो भी जिसके भी कॉन्टेक्ट में आते हैं उस इंसान को मतलब कुछ खुजली वगैरह एंड ऑल ब्लिस्टरिंग थोड़े कर देता है, एंड दैट्स वाई वो केमिकल का नाम पूछ सकते हैं, दैट्स कैंथ्राडिन। नेक्स्ट लेट्स मूव। So now this is Hymenoptera, and Hymenoptera is very important. इसमें membranous wings होते हैं and the most important feature ये वाला होता है the propodium. What is propodium? जो first abdominal segment होता है वो thorax के साथ क्या होता है, वो ये देखो ये narrow जो चीज़ बन रही है उसको हम propodium बनाते हैं, ठीक है। So ऐसे ये feature है Hymenoptera का, and this question is very important and this can be asked because this is important question.
ओके। और हिम्नोटेरा में क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स आते हैं ज़्यादातर, और एक ही फैमिली ऐसी है जिसमें थोड़े हार्मफुल इंसेक्ट्स आते हैं, सॉफ्लाइज वगैरह आती है, जैसे कि टेट्रेंडी है, इसमें आते हैं सॉफ्लाइज। लेकिन जो बाकी फैमिलीज हैं उसमें सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इसो इसोटिया मैमानिस, सॉरी जो भी मैंने बोल दिया गलत होगा। एंड दे आर pre-pupal, and they are parasitoids, and they act on sugarcane top borer. And next is the कैम्पलोलेटिस क्लोरिडी, जो कि एक लार्वल पेरिस्टोइड है, किसका, कॉटन बॉलवर्म का। ठीक है। सो ये क्वेश्चन, ये सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन आई डोंट थिंक सो इज इंपॉर्टेंट, बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड समवेयर और एनीवेयर इन द एग्जाम। ठीक है। ओके। सो द ब्रेकिनोइडी में क्या आते हैं, कोटेशिया आता है, द कोटेशिया एंड ब्रेकन, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्या है, ये दोनों लार्वल पेरिस्टोइड्स हैं। ठीक है। ओके। सो पेरिस्टोइड्स आई थिंक सो यू पीपल नो। सो एक्चुअली खुद भी एक पैरासाइट होते हैं, ये खेत में जो हार्मफुल इफेक्ट इंसेक्ट होता है उसके लार्वा या फिर उसके एग में जाके अपना खुद का मतलब एस्टेब्लिशमेंट करने लग जाते हैं, एंड बेसिकली उसको मार देते हैं और खुद ग्रो कर जाते हैं, और इनके ग्रो करने से फील्ड को कोई नुकसान नहीं होता, जिससे क्या होता है, फील्ड बच जाता है। दिस इज हाउ दे आर कॉल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। नाउ इफ एनीबडी इज नॉट नोइंग, उसको समझ आ गया। सो नाउ दिस वे क्या होता है कि जो ये उसके अगर कोई लार्वा को इफेक्ट करता है किसी इंसेक्ट के, फॉर एग्जांपल कोटेशिया इज लाइक इट्स अ बायो कंट्रोल एजेंट। सो ये शुगर केन बोरर के लार्वा को जाके इफेक्ट करता है और उसको ख़त्म कर देता है, और फील्ड में जो भी क्रॉप होती है वो बच जाती है, ऐसे होता है। ठीक है। सो बिल्कुल सेम ऐसे ही हो गया। अब ट्राइकोग्रामा जो है उसकी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है। ये एग पैरासिटॉइड है, ये क्वेश्चन भी आता है दैट ट्राइकोग्रामा चिलनोसिस एंड जिपोनिकम, दे आर एग पैरासिटॉइड्स। एंड ठीक है, इनके ट्राइकोकार्ड्स इन बहुत कुछ बनता है और उसको फील्ड में हम रिलीज करते हैं, एंड देन दे डू देयर वर्क, एवरीथिंग बायो कंट्रोल दे डू। ओके। सो ये शुगर कॉर्न ट्राइकोग्रामा चिलनोसिस किसका है, दे इट्स ऑफ शुगर केन शूट बोरर, एंड ट्राइकोग्रामा japonicum is of rice stem borer and cotton bollworm. Fine. So this is all from my side. For I have covered the important families and orders and everything, and the important points I have covered till now. I hope this video is helpful for you, and if you like this video, the content is good, just do subscribe this channel, because I have done lots of hard work to make the slides. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.